Students, this is my second video of class 8 chapter 7 means algebraic identities, that is worksheet 5. So in that previous worksheet I have done that the application of these four properties over there, that x minus a into x minus b, or x plus a into x minus plus b, or x minus a into these kind of properties over there, that using this property I have done the sum. But that question number 2 means in this video whatever I am going to do, that suppose first is this. Suppose if I ask you multiply this. So if we are going to do the general method, means 102 into 103, that simple method whatever you have done in the junior class, from the junior class, so that you can do it. But using all these identities, there are more two, you know na, that x plus b, another one x plus a, x minus b. These four properties, using these four properties you have to do this calculation. What to do? That always, student, remember this, always make them means always divide them into number where you can multiply easily. Those numbers can be multiplied easily, okay? Like 100 can be multiplied with any number easily. Similarly 2 and 3, they are a small number, we can easily calculate this. So this way you have to separate, understood na? Suppose in the place of 103 if it is there 98, already this kind of thing I have explained earlier. So what I should write there, 100 minus 2, no? So if I write this, so we have to use which formula? That one. Suppose in place of 103 if it is 98, then what should I write over there? That, no? Understood na? So then simply we have to calculate this, though it is a formula of a square minus b square, but you can calculate, you can use this one, no? That means this formula, understood? So you have to arrange this, then you have to do it. So guys, chalo, from question number 2 we are going to do. Let's start. So now question number 1, question number 2, Roman 1, that I have to do 102 and 104. Easily you can do it ना. देखो एक बात याद रखना कि जो भी करना है हमें, जो हमारा रूल क्या था, x प्लस a और x माइनस a, कुछ भी हो, x माइनस b, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ना, इन दोनों को इक्वल रखना है ना? एक कोई ना कोई एक वैल्यू को, जो बिगर नंबर होगा, मतलब यहाँ पे देखो x प्लस a एंड x माइनस b, तो ये वैल्यू को हमें इक्वल रखना है. तो यहाँ पे भी तुम ऐसा नहीं करना कि इसको कोई और नंबर, मैं जैसे मैं इसमें हम तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ओके? तो पहले इसको करते हैं. तो 100 में मतलब हमें x को फिक्स करना है. तो यहाँ पे देखो दोनों ही नंबर किसके करीब है? 100 के. तो दोनों को कैसे लिखना है? 100 प्लस 2 एंड 100 प्लस 4. बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना? तो चलो आप देखो कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस, मतलब ये वाला फॉर्मूला है, ये ही है ना? तो कैसे यूज करोगे? मैंने कहा था ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 स्क्वायर एक्स स्क्वायर था उधर, फिर प्लस लिख के ब्रैकेट में लिखना है और x लिखना है, और अंत में आके इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 4 2 8. अब अंदर क्या लिखना है? इस ब्रैकेट के अंदर 2 एंड ये 4 को लिखना है. साइन क्या है? 2 के आगे प्लस, 4 के आगे भी प्लस. यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस ही है यहाँ पे, है ना? ये प्रोसेस है. तो x नहीं है, x मतलब क्या है हम लोगों के लिए? 100, इसलिए ऐसा लिखा. फिर से देखो x प्लस a एंड x प्लस b. अगर ऐसा होता तो क्या लिखता हम? x से स्क्वायर, देन ब्रैकेट लेके यहाँ पे x, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है a b, और ब्रैकेट के अंदर प्लस a प्लस b, ऐसे लिखते हैं हम, है ना? तो इसलिए x मतलब क्या हम लोगों के लिए? जो इक्वल है उसको लिखना है, स्क्वायर उसका, और यहाँ पे जो अनइक्वल नंबर है उनको ब्रैकेट के बीच में लिखना है और इक्वल नंबर को बाहर लिखना है, ओके? फिर प्लस अनइक्वल नंबर को मल्टीप्लाई करना है. समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? दोनों को कंपेयर करो. तो आप देखो यहाँ पे क्या होने वाला है? 100 स्क्वायर मतलब 2 0 की जगह पे 4 0 आने वाला है. अब 2 प्लस 4 मीन 6 इंटू 100 हो जाएगा प्लस 8. अब देखो
10,000 प्लस 600 प्लस 8, तो एकदम कैलकुलेट करने अगर करोगे तो क्या होगा, ये तो 608 होगा, तो 10,608 इज द आंसर। देखो कितना इजीली ये इसका कैलकुलेशन मैंने कर डाला। ओके, तो चलो अब इसको करते हैं। तो फिर देखो ये दो नंबर बोथ आर वेरी क्लोज टू 200 द नंबर। ओके, सो वी हैव टू डिवाइड द नंबर। सो देखो मुझे कैसे डिवाइड करना है इन दोनों को, 200 के आसपास, मतलब 200 प्लस और 200 माइनस, है ना, तो हमें इनको सेम रखना है। ओके, तो चलो फिर अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इनका स्क्वायर होगा जो पहला वाला नंबर है, x का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 200 का स्क्वायर, सेम रूल, प्लस ब्रैकेट देके जो सेम नंबर है उसको इधर लिखना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 6 30। ओके, और ब्रैकेट के बीच में +6 +5 इन दोनों को लिखना है। आ गया। अब 200 मतलब 2 का स्क्वायर क्या है 4, और 00 के जगह पे 40। अब इनको ऐड करोगे तो 11 इंटू 200 प्लस 30, 40,000 प्लस 11 इंटू 2 22, मतलब 2200 प्लस 30 इक्वल्स टू, फिर क्या होगा बताओ, 42230, 42,230 इज द आंसर। ओके, तो चलो अब इसको करते हैं। अब इन दोनों जो नंबर, ये दोनों नंबर ये भी 100 के करीब है या नहीं, एकदम, क्योंकि ये दोनों ही 100 से छोटा नंबर है। तो क्या करना है हमें, 100 माइनस 2 और इसको 100 माइनस 4, दोनों ही माइनस होगा तो क्या होगा, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मतलब इन दोनों को सेम रखना है, जो भी करो इन दोनों को सेम रखो। ओके, तो अब बताओ 100 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस देके ब्रैकेट लिख के जो नंबर जो सेम है उनको लिखना है इधर, फिर माइनस माइनस प्लस 2 4 8। अब 100 स्क्वायर मतलब 10,000 हो जाएगा ना, प्लस, अब सॉरी यहाँ पे मिस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो क्या होगा -2 -4। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो -6 इंटू 100 प्लस 8। अब देखो 10,000 माइनस प्लस माइनस 600 प्लस 8, 10,000। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो -592 होगा, इन दोनों को कैलकुलेशन अगर करोगे तो फिर हमें फिर से माइनस करना है। तो अगर तुम कॉलम मेथड में नहीं कर पाओगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल मेथड में नहीं कर पाओगे तो कॉलम मेथड फॉलो कर सकते हो, नहीं तो हॉरिजॉन्टल मेथड में कर पाओगे तो कर दो। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर 1 कैरेट मतलब 0, है ना, फिर 1 कैरेट 6 मतलब 4 आ गया, 1 कैरेट मतलब 9, सो 9,408 इज द आंसर। ओके, अब देखो ये वाला सम, मैंने कहा था ना कि जो भी करो मतलब इन दोनों को, पहला वाला जो नंबर है दोनों बाइनोमियल में उनको इक्वल रखना है, उनको सेम रखना है ना। तो यहाँ पे देखो ये दो नंबर जो है किसके करीब नंबर है, 100 के और 90 के, दोनों ही 90 के करीब नंबर है। तो अगर कोई हमें कोई कह सकता है सर ये तो 85 है, ये तो दोनों के बीच में है, हाँ है, तो समवन कैन राइट 80 + 5 ऑल्सो, बट अगर तुम इसको लिखने की कोशिश करोगे तो क्या लिखना है 80 + 7, ऐसे करना है तो ऐसे करोगे, और नहीं तो 90, सोचो ये 90 के करीब है तो 90 - 3 87, और यहाँ पे क्या होगा 90 - 5, ऐसे भी कर सकते हो एज यू विश। तो अगर इस मेथड में करोगे मतलब ऐसे डिवाइड करोगे तो दोनों को सेपरेट करोगे तो ये वाला रूल अप्लाई होगा, और नहीं तो अगर ऐसे करोगे तो सेकेंड वाला रूल, मतलब यहाँ पे जो मैंने करा है वो रूल अप्लाई होने वाला है। तो चलो अब मैं ना सेकेंड वाला ये वाला चूज करता हूँ। ओके, तुम प्लस भी चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पे लिखना है 90 - 3, 87 कैन बी रिटन एज, एंड देन 90 - 5। तो जो सेम नंबर है उनका स्क्वायर करके लिखना है, फिर प्लस देके ब्रैकेट में जो सेकेंड नंबर है वहां पे वो दोनों को लिखना है, फिर इनको जो सेम नंबर को इनटू करके लिखना है, फिर माइनस माइनस प्लस 5 3 15 होगा 15। ओके, तो नाउ 90 स्क्वायर मतलब पहले 9 का स्क्वायर क्या है बताओ, 9 का स्क्वायर 81 है, तो 81 फिर एक 0 के बदले में 2 0 आएगा,
है ना, प्लस अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड ही होगा ना, क्योंकि सेम साइन है, तो -5 -3 -8 इंटू 90 प्लस 15। अब 8100 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होने वाला है, तो 8 9 72 माइनस 720 प्लस 15। ओके गाइज, नाउ क्या होने वाला है, इनको पहले कैलकुलेट करता हूं। 8100 माइनस, अब बताओ ये क्या हो गया, 705 होगा, है ना। तो आप इसको माइनस कर दो कॉलम मेथड में, नहीं तो हॉरिजॉन्टल मेथड में डायरेक्ट कर सकते हो। तो 5 आएगा, फिर 1 कैरेट यहाँ पे मतलब 9 आएगा। अब फिर से 1 कैरेट मतलब 8 हो गया, 8 मतलब 3 आएगा, फिर से 1 कैरेट मतलब 7। सो 7395 इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सो 104 एंड 95, देखो दोनों ही नंबर जो है, तो तुम्हें लग सकता है कि सर 95 कैन बी रिटन एज 90 + 5 एंड 100 - 5 ऑल्सो। लेकिन 104 जो है ना, उसको अगर तुम 100 + 4 करके लिखोगे तो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि इसको 90 + 14 करोगे तो उससे ये बेहतर है। तो इसलिए इसको भी क्या करना है, 100 - 5 करना है। समझ में तुम लोग आ रहा है ना। देखो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इसको तुम 90 + 5 भी कर सकते हो, लेकिन हमें इन दोनों को इक्वल रखना है, तो दोनों में बैलेंस करके लिखना है। मतलब इसको 100 के करीब, दोनों ही नंबर जो है वो किसके करीब है, 100 के, 90 के नहीं है। ये नंबर 90 के करीब है, लेकिन ये 90 के करीब नहीं है, लेकिन दोनों ही क्या है, 100 के करीब है। एक 100 से छोटा नंबर है, एक 100 से बड़ा नंबर है, ठीक है ना। तो चलो अब फिर प्रोसेस तो वही है, 100 का स्क्वायर पहला जो है उसका स्क्वायर लिखना है, और बाद में क्या लिखना है, प्लस माइनस माइनस, 4 5 20। फिर यहाँ पे प्लस देके ब्रैकेट, और जो कॉमन नंबर है उसको लिखो, सेम नंबर जो है, तो ब्रैकेट में +4 यहाँ पे -5। अब 100 स्क्वायर मतलब तो 10,000 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, -1 × 100 -20। अब बहुत ही इजी हो गया, देखो माइनस प्लस माइनस 100 -20, तो ये इन दोनों का अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, -120, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव नंबर है तो हमें ऐड करना है। तो अगर इससे करोगे तो हम इसी मेथड में कर देता हूँ, तो इन दोनों को कैलकुलेट करो, 0 8 1 कैरेट 2 मतलब फिर से 8 आ गया, अब फिर से 1 कैरेट 9 9880। ओके, नाउ नेक्स्ट दिस वन। सो 203 एंड 198। देखो गाइस, मैंने जो 7 नंबर है क्वेश्चन उसको नहीं करा है, उसमें जो है ना वो है 97 एंड 102, इसके जैसा ही साम है और इसके जैसा तुम कह सकते हो। तो हमें क्या करना है, उसमें जो 97 एंड 102 है, तो 100 को लिखो 100 + 2 और 97 को लिखो 100 - 3, फिर इसका कैलकुलेट करो, आ जाएगा इसका आंसर। ओके, तो ये सेम जैसा साम है, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। तो अब इसको करने के लिए क्या करना है, 200 + 3 दोनों ही क्या है, किसके करीब है, 200 के, तो 200 में इनको तोड़ना है ना। तो आप बताओ क्या होगा, 200 × 200 मतलब 200 का स्क्वायर आने वाला है इधर, फिर प्लस देके ब्रैकेट, फिर 200, अब प्लस माइनस माइनस 6, 2 3 6, ओके, इक्वल्स टू 200 स्क्वायर क्या होगा बताओ, 2 का स्क्वायर 4 और 20 के बदले में 40 आएगा। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, 3 + 3 - 2, तो +3 - 2 मतलब 1 आ जाएगा इंटू 200, तो 200 ही होगा -6, तो 1 × 200 मतलब क्या होने वाला है, 200 ही होने वाला है, तो इसको 200 लिख देता हूं डायरेक्ट। ओके, तो 40,000, आप बताओ इनका कैलकुलेट करोगे इन दोनों का, तो क्या होगा, 194 प्लस ही होगा क्योंकि ये बिगर नंबर है, तो अगर इसको ऐड करोगे तो 40,194। ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ दिस वन, 35 एंड 37 दोनों ही किसके करीब है, 30 का, और 40 भी चूज कर सकते हो, तो मैं 30 करके करता हूं, 30 + 5 एंड 30 + 7। गाइज इसको तुम 40 भी कर सकते हो, मतलब 40 - 5, और ये क्या होगा, 40 - 3, ये कैलकुलेशन भी तुम लोग कर सकते हो। ओके, तो चलो फिर अब इन दोनों का कैलकुलेट करना है, मतलब 30 का स्क्वायर आने वाला है इधर,
फिर प्लस दे के ब्रैकेट में +5 +7 इंटू 30 प्लस 5 7 35। ओके, तो अब क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 है, एक जीरो के बदले में 2 जीरो आने वाला है। आप इनका ऐड करोगे तो 12 इंटू 30 प्लस 35। अब देखो 900 प्लस, अब ये क्या होगा, 12 3 36 एंड जीरो आ जाएगा, फिर 35। ऑल प्लस है मतलब ऐड करते जाओ, 5 आ गया, 3 6 9 आ गया, अब 3 9 12 1295 इज द आंसर। अब इसको करते हैं, चलो अब ये लास्ट वन है, तो क्या होगा 106 एंड 93। तुम लोग बताओ क्या होगा, ये 100 के करीब नंबर है दोनों ही, तो बस 100 में तो इसको तोड़ना है। तो गाइस एक काम करते हैं, चलो तुम भी कोशिश करो, हम भी करते हैं, चलो देखते कौन फास्ट होता है। ओके चलो, तो दैट कैन बी रिटन एज 100 प्लस 6 एंड दैट इज 100 माइनस 7। व्हाई 93 माइनस 7? तो फिर 100 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 6 माइनस 7 इंटू 100 प्लस माइनस माइनस 35, सॉरी 42 होगा। फिर 100 स्क्वायर मतलब दिस माइनस 1 इंटू 100 माइनस 42। अब 10,000 होगा, माइनस 100 एंड माइनस, देखो माइनस 1 इंटू 100 मतलब क्या होगा, माइनस 100 माइनस 42। अब 10,000 माइनस 142, क्योंकि इन दोनों को ऐड करना है हमें, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। आप इनका कैलकुलेट करो, देखो माइनस ये 8 आ जाएगा, फिर 1 कैरेट मतलब 5 मतलब फिर से 5, 1 कैरेट 2 मतलब 8, देन 1 कैरेट 9, 9858 इज द आंसर। तुम लोगों का हो गया ना, था कि इस वीडियो में ही क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 3 है वो भी कर देंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व कर देंगे, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। लेकिन ये वीडियो भी लेंदी हो चुका है, तो मैंने सोचा कि चलो और एक पार्ट बना देंगे। तो उस पार्ट में क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको पूरा, मतलब एक भी क्वेश्चन में स्किप नहीं करूंगा, जो 9 क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाले हैं हम। तो चलो गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। जो लोग मेरे चैनल में नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड जो लोग पहले से ही हो मेरे से जुड़े, तो उन लोगों को कहना है कि लाइक कर दो ना, क्या कर रहे हो, कमेंट भी करो, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करो, अगर बुरा लगा तो भी कमेंट करो ना। सो गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।